चलिए, switching over to the next question. Okay, this is part number G. See the last part. Limit of f(x) is tending to 1 does not exist. Yes, this we have proved. Look here, x tending to 1 from the left side, the answer is coming to be -1, and limit of f(x) is tending to 1 from the plus, it means right side, answer is coming to be 0. I told you once these two limits answer are different, we say limit does not exist. And the same, the author is saying that limit of f(x) extending to 1 does not exist. तो आपने ये yes true, हमने भी साबित किया limit does not exist. The proved in part B. Any problem to anybody for this question? Yes. Any trouble, any problem, any step not clear? Question number 3. इससे पहले भी हमने लिमिट फ्रॉम द ग्राफ सिखाया आपको. अब आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की लिमिट्स निकालना. ग्राफ से खत्म. एक दो क्वेश्चन और हैं, पैरेलल क्वेश्चंस यू सी फ्रॉम द बुक, और वो आपने खुद कर लेना है. और अगर आप कीजिए, देखिए आप बुक को खोल के शाम को बैठ के कीजिए इन क्वेश्चंस को, अगर समझ नहीं आए यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम मी ऑन व्हाट्सएप. पढ़ सकते हैं आप, ये मैं मना नहीं करता कि आप ना करें. देखिए सीखने में तो कोई भी बुरी बात नहीं होती है. कीप ऑन टॉकिंग टू मी. इस क्लास में चूंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, लिहाजा आपको सुनना है, और फिर जब खुद करें तो कुछ डिफिकल्टी है तो देन यू आस्क मी लेटर ऑन. Okay, in exercise 11 to 22, you have to find the limit. Very simple. Question number 12 I am taking. This is the expression. याद रखिएगा कि ये कहलाता है polynomial. ठीक है? Some terms in x with any power. This is called a polynomial. ये quadratic polynomial. क्योंकि x is tending to, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता. तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिट वी गेट x की जगह 2 रखना है, जहां जहां x 2 है. सिंपलीफाई कीजिए, आंसर इज कमिंग टू बी 4. कोई प्रॉब्लम है इसमें? है कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? आई एम श्योर यू आर नॉट हैविंग. नो सर. अब आइए यहाँ पे आएगा, देखिए x is tending to 2. अच्छा, लिमिट इज 2x plus 5 upon 11 minus x power 3. आप डायरेक्ट ये भी सब्स्टिट्यूट कीजिए. 2 to the 4 plus 5 in the denominator. 11 minus 2 power cube means 8. 11 minus 8 is 3. In the numerator you are getting 9. 9 by 3, answer is 3. No problem. ये है direct substitution of the limits once you are not getting any infinity type answer. So as long as you are getting some numerical value, keep on putting the limit directly. This is the direct substitution. अब ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 22. Especially I am taking all the varieties so that you can attempt all the other questions. देखिए, in this question number 22, under root 5h plus 4 minus 2 upon h, h is tending to 0. So we want to see what is the form of this question. So just in a bracket, you just check it what is the form. The moment I am putting h as 0, so this will be under root 4. Under root 4 means 2. 2 minus 2 will be 0. And h is tending to 0. In the denominator, you are getting 0. 0 over 0 is called an indeterminate form. Its answer is not known. It's neither infinity, nor 0, nor 1. Okay. This is indeterminate form. In all such cases, once this type of question is there with one term in the under root, we go for the rationalization. What is rationalization? This has been taught to you in intermediate level, that you just change the sign wherever you are finding an under root term. ये difficult तो term ऊपर ही है ना, आपके नीचे वाली तो difficult नहीं है. इसमें आप put और ये change the sign in between these two terms. ये first term है पूरी under root के अंदर one term, and second term is 2. Change this sign, make it plus sign, और इससे आप ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें. So multiply your given question with under root 5h plus 4, and changing the sign you'll be getting plus 2,
and same term you will write in the denominator, so that actual question तो वहीं पे रहना चाहिए ना. We can't do a step in a way कि कुछ ऐड कर दिया और बस गलत हो जाएगा ना. This is not an equation. इक्वेशन होती तो हम दोनों साइड पे ऐड कर लेते, सबट्रैक्ट कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड. बट दिस इज एन एक्सप्रेशन. इक्वेशन और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिए फर्क. सो इन द एक्सप्रेशन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से आप डिवाइड भी कीजिए, सो दैट द एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम. सो अब मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. If you remember this formula, a minus b or a plus b दो फैक्टर हैं, तो if you multiply them, the answer will become a square minus b square. This is taught in the 7th class to the students. पर आगे onwards आप पढ़ते रहते हैं. I hope you know it. You see, first term is same as the first term, second term is same as the second term. In between, one is carrying a plus sign, another is carrying a minus sign. This is the situation. So I can take the square of the first term, then minus times square of the second term. The square of the first term, what is the first term? 5h plus 4 under root. इसका square ले लीजिए, minus second term is 2, इसका square ले लीजिए. In between should be minus. Divided by h times, put in it another bracket. ऐसे लिख लीजिए. इसको multiply मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए अभी और देखिएगा इसका फायदा क्या होगा. After taking the squares in the numerator and the root will cancel this power 2. They will be cancelling each other's effect. तो 5h plus 4 यहाँ बचेगा. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 with minus sign. In the root side the same expression as it is. मत कभी कुछ करें इसके साथ. 4 has been cancelled. Now you are left with 5h over h. देखिए h से h भी अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अकेली टर्म है ना. जब तक कुछ ऐड हो रहा है तो नहीं कैंसिल हो सकता था. बट नाउ only 5h is left in the numerator and h times this factor is left in the denominator. You can cancel h. तो 5 upon अब जो बच गया नीचे अंडर रूट में 5h plus 4 plus 2. ओके, this much is left in the denominator. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आसान भी है, कोई मुश्किल तो नहीं है. अब पुट कर दें लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब हमें नीचे 0 आने का खतरा खत्म हो गया. नाउ पुटिंग द लिमिट एज h टेंडिंग 0. 5 अपॉन ये पहली टर्म 0 हो जाएगी प्लस 4 प्लस 2. प्लस 2 बाहर है, याद रखिएगा. 5 अंडर रूट 4 विल बिकम 2 प्लस 2 इज 4. 5/4 इज योर आंसर. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं है ना. देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही है. इसको कहते हैं, ऊपर वाला मेथड था, इस मेथड को कहते हैं रैशनलाइजेशन. उससे पहला वाला क्या किया था हमने? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिट. एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. निकालेंगे हम, इसके फैक्टराइज करेंगे और कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर. देखिए हर एक की टेक्निक अलग अलग है. यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जो 0 बना रहा है नीचे. देखिएगा लिमिट हमारी क्या जा रही? t टेंडिंग टू -1. यहाँ -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 लिख दिया मैंने. फिर t को -1 रखोगे, क्या बन जाएगा? -3. 2 एज इट इज इन द डिनोमिनेटर. +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, -2. तो 2 + 1 is 3. 3 - 3 is 0 and again 2 - 2 is 0. The form is 0/0. This is again the indeterminate form. तो इन केसेस में हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है अपनी एक्सप्रेशन को. देखिए फैक्टराइजिंग एंड कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर. क्या करेंगे आप? लिमिट x t टेंडिंग टू -1. t है हमारा. मिडिल टर्म को आप ब्रेक करते हैं, आपको पता है ना. 3t कैन बी रिटन एज 2t + t, ताकि हम जब इसको ऐड करें तो 3 हो जाए और जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से तो आंसर हमारा 2 आना चाहिए. ये रूल है ना. सिमिलरली इसको ब्रेक करना है. मिडिल टर्म हमारी -t है, तो ऐड करने से -1 आए और मल्टीप्लाई करने से -2 आए. टर्म्स आ रही हैं -2t और +t. इसको ऐड करेंगे तो -1 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा. ठीक है. यू नो हाउ टू फैक्टराइज द टर्म्स. लिमिट t टेंडिंग टू -1. यहाँ पहली दो टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है? t. इन द ब्रैकेट विल बी t + 2. In the last two terms, you are getting 1 as common, t + 2. Come in the denominator from the first two terms, t is common, t - 2 is left.
and from the last two terms nothing is common, means 1 is common, so t minus 2. Further limit t tending to minus 1. अब इन दोनों में से t plus 2 is common, and in the other bracket t plus 1 will be left. Similarly, in the denominator t minus 2 is common, t minus t is common, and in the denominator t plus 1 is left in the next bracket. T plus 1 now you can cancel in the numerator as well. That's why we call it factorizing and cancelling the common factor. इस common factor की वजह से वो 0 और 0 बन रहा था, अब नहीं बनेगा. अब t की वैल्यू पुट कर दिए, पुट द लिमिट, t को -1 रखिए, -1 + 2 और डिनोमिनेटर में -1 -2, तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा -3. फाइनली -1/3 इज द आंसर. एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? पूछिए. आसान नहीं सवाल, कोई मुश्किल तो नहीं है. ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे लिमिट का निकालना. देखिए क्वेश्चन 32 बड़ा आसान है. इसी तरह है, मैंने आपके लिए बहुत सारे कर दिए हैं, बाकी आप फिर कीजिएगा. देखिए इसके एलसीएम ले लें, पहले फॉर्म चेक कर लें. 0 रखेंगे तो 1 ओवर -1, ये -1 बन जाएगा. यहाँ रखेंगे 1 ओवर 1, तो -1 और ये +1 0 हो जाएगा, और नीचे x is tending to 0 तो 0 हो जाएगा. तो 0 ओवर 0 इज द फॉर्म, और टेक द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना. इन दोनों का एलसीएम लेने का तरीका ये है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू. ये फैक्टर इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर इधर आ जाएगा. ठीक, 1 से 1 कैंसिल हुआ, लिमिट क्या आ गई, x और x ऐड हुआ तो 2x. ये नीचे दोनों फैक्टर आ गया, और ये भी नीचे आएगा. अच्छा, ये भी नीचे आएगा, याद रखिए, ये आपको लॉग पाना चाहिए. अब x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2. अब आप 0 रखें, कोई खतरा नहीं है. x को 0 रखें तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा. आंसर इज 2 ओवर -1 -2 इज द आंसर. एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? हेलो, नहीं ना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए. ये भी रैशनलाइजेशन होगी. क्यों? क्योंकि अंडर रूट में आ गया. तो इसको चेंज करें, इसका साइन क्या आएगा, प्लस का. तो 5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. तो भाई क्या बोलो. तो ये जो अभी लास्ट वाला आपने करवाया एक्स इससे ऊपर वाला, पूछो कुछ. इसमें सर ये जब ये सेकंड स्टेप में है, यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ? जी जी यहाँ पे हाँ बोलो. ये 2x और ये x जो नीचे कटा कैंसिल हुआ है x, ये वाला x कहाँ से आया? ये तो यहाँ डिवाइड में था, ऊपर आके मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, सुनो, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग से लोगों के जहन में. एक मैं चीज लिख रहा हूँ 3/5, ये एक चीज है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 जी. तो 7 नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा? सर 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, मैंने 5 के ऊपर जो लिखा हुआ. मैंने 2/5 बताया ना ऊपर. जी जी, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा. गलत बता रहे हो. ये चीज तो सिखा रहा हूँ ना. यहाँ पे यही किया मैंने. देखो 2/5 एक फैक्टर है. जी और जी, नीचे 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ. लिख सकते हैं. अब तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/7 बनेगा कि नहीं? बोलो क्या बनेगा? सर वो तो 5 के लिए बनेगा ना, 1/7. ऊपर वाले को तो छोड़ दो ना, 2/5 उसको तो छेड़ना ही नहीं हमने. 2/5 को तो हमने नहीं छेड़ना ना. अब रह गया 7 नीचे. 7 को मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 से डिवाइड कर दो, 7/1 हो गया. अब दो फैक्टर हो गए, ऊपर हो गया 2/5 और नीचे हो गया 7/1. डिवाइड कर रहा है ना वो. जी जी, जब नीचे वाले फैक्टर को जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे तो ये उल्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है. तो 1/7 हो जाएगा. जी जी, 1/7 हो जाएगा. 7 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है या ऊपर? नीचे हो रहा है ना. नीचे 2/5 तो हो रहा है लेकिन 2/5 क्या है ना. 7 जो है वहाँ अभी समझ 5 में से नहीं आ रहा. मल्टीप्लाई, नहीं सर. वहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, इसी तरह ये जो x था ना, ये भी मल्टीप्लाई होके नीचे ही आएगा, क्योंकि x के नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला गया और x नीचे आ गया. ये मैंने x यहाँ लिखा है. ये तुम पूछ रहे थे ना कि ये कहाँ से आ गया, वो जी, ये x है. क्लियर हुआ सही है सर, ज़्यादा कर लो. है? ज्यादा नहीं. अच्छा,
तो मैं एक हिंसा नहीं सर लिख सही है, जज़ाकल्लाह। है, आ गया सब? चलो शाबाश। जी सर। अगर नहीं आया ना तो ये दोबारा कर लो, जैसे 3/4 है, उसको डिवाइड कर लो 5 से, तो 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ, ये 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। या अगर एक और सुनो, 3/4 और 5/7, 7 ऊपर जाएगा ना, 7/5 लिखोगे ना उसको, जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे 7 ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा। जी, जी। जी सर, जी सर आ गई समझ, ठीक है जज़ाकल्लाह। गुड गुड, ये बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, मैंने देखा है। कुछ लोग इसको ऊपर लिख देंगे तो सारा गलत हो जाएगा, तो नीचे ही लिखना है। आइए, दिस क्वेश्चन अगेन यू रैशनलाइज, नीचे वाले की टर्म प्लस करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये 4 - x है, ये ऊपर, इसको तो ऐसे रहने दें। या a² - b² का फॉर्मूला लगाए, 5 का स्क्वायर और माइनस, क्योंकि टर्म सेम है ना, तो माइनस करके इसका स्क्वायर लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x² + 9 बचेगा, ब्रैकेट्स खोल दें नीचे, 25 - x² - 9, 16 - x² बचेगा, 16 - x² के 2 फैक्टर बन जाएंगे। ये देखिए 16 - x², अब इसको लिख सकते हैं ना 4² - x², उसका a - b लगाओ और a + b, ये तो पता है ना आपको, a² - b² का फॉर्मूला। तो ये 2 फैक्टर मैंने बनाए, एक कैंसिल कर दिया, इसने मुसीबत डाली हुई थी, इसकी वजह से वो 0/0 आ रहा था, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद मसला खत्म हो गया। अब x04 रखें, जो बच गया वो लिख लें, उसके बाद x04 रख दें, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 + 4 8, 10/8। देखो 10/8 कैंसिल करोगे, 5/4 डन हो गया, समझ में आ गया।